অবস্থা এত ঠুনকো নয় যে কেউ চাইলেই তাকে সন্ত্রস্ত করতে পারে, এটা সম্ভব হবে না। যারা ভাবছেন তারা ভুল ভাবছেন। অবশ্যই সন্ত্রাস করা মানে কি, সন্ত্রস্ত করা মানে কি? কালকে তো জাস্টিস অশোক গাঙ্গুলি বলেছেন যে পরে কোন দিন তার বাড়িতে গিয়ে মারবে। তাই না, আমি কোনো দলের হয়ে বলছি না, কোনো দল করেছেন কিনা তাও আমি জানি না। এবং আমি শুনেছি বরং শাসক দল এটাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, বলেছেন যে আমরা এটা কিছু করিনি। কালকে আমি সেই টিভি অনুষ্ঠান শুনেছি, তারা পরিষ্কার বলেছেন। কিন্তু যারা করেছেন তাদেরকে আমরা চিনি, তাদেরকে আমরা জানি, তারা এর আগেও করেছেন, কী উদ্দেশ্য নিয়ে করেছেন সেটা তদন্ত সাপেক্ষ। বিচারপতিদের বাড়ির সামনে পোস্টার দেওয়া হচ্ছে, একই পোস্টার হাইকোর্টেও দেওয়া হচ্ছে, বাড়ির সামনে। এই বিষয়ে বিশেষ মতামত আমি দেবো না। যা হয়েছে আপনারাও দেখেছেন, আমিও দেখেছি। আর টিভির দৌলতে, আপনাদের বিভিন্ন চ্যানেলের দৌলতে সারা ভারতবর্ষের মানুষ জেনে গেছেন। আপনি ইতিমধ্যেই জনগণের বিচারপতি, আপনাকে নিয়ে এরকম কেন এই কথাটা আপনারা বলেন আমি ঠিক জানি না। আমি চেষ্টা করি, আমার মাথায় থাকে শুধুমাত্র সোশ্যাল জাস্টিসের কথা। সোশ্যাল জাস্টিস যেটুকু আমি পড়েছি এবং বুঝেছি, তাতে আমি মনে করি যে মানুষকে খুব দ্রুত বিচার যদি পাইয়ে না দেওয়া হয়, তাহলে মানুষ চলে যাবে পার্টি অফিসে বা লোকাল কমিটি অফিসে। এটা আমাদের পক্ষে কাম্য নয়। নিশ্চয়ই আমি করেছি তো, করেছি না, আজকেই করিনি, কিন্তু আমি করব। আজকে আমি ব্যক্তিগত কারণে করতে পারিনি, আমি করব। এবং শুধু আমি একা করব না, আমার সঙ্গে আরও কয়েকজন আছে। স্যার, একটি প্রশ্ন, যে আপনার এই অনুষ্ঠানে বিকাশবাবু ছিলেন সঙ্গে, হ্যাঁ। যেহেতু আপনার এজলাসে একাধিক মামলা উনি হ্যাঁ, লড়ছেন, হ্যাঁ। সেক্ষেত্রে দুজন এক মঞ্চে পাশাপাশি। এবং হ্যাঁ। বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য এটার মধ্যে রাজনৈতিক ব্যক্তি। না, রাজনৈতিক পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। আমি বিশ্বাস করি না একটা মানুষও যে আছেন যিনি রাজনৈতিক বাইরে। তো বিকাশবাবুর পাশে আমার বসে থাকার মধ্যে কোনো আমি দেখছি না, কোনো অর্থ খুঁজে আমি পাচ্ছি না। আমি আজকে এসেছিলাম গণদর্পণের অনুষ্ঠানে, কাকতালীয়ভাবে তিনিও আসতে পারেন, বা কোনো উনি ভাইস প্রেসিডেন্ট, উনি আসতে পারেন। সুতরাং পাশাপাশি বসে থাকার মধ্যে কোনো অর্থ খুঁজে বার করাটা ঠিক না। শাসক দল অনেক সময় আপনাকে আক্রমণ করে এই কথা বলে। না, শাসক দল না, শাসক দলের অনেকে আমাকে বলেছেন তারা আমাকে ভালোবাসেন, তা না। স্যার, বিচারপতি মালদার এজলাসের বাইরে হ্যাশবোর্ড দিয়ে এজলাস আটকে দেওয়া হচ্ছে, এই ধরনের ঘটনা কার্যত নজির। আমি কলকাতা হাইকোর্টে 23 বছর প্র্যাকটিস করেছি, আর প্রায় 5 বছর হয়ে গেল আমি বিচারপতির আসনে বসে আছি। আমি এই ঘটনা কলকাতা হাইকোর্টে কোনো आज तो टीम का बैड लक ही खराब है। तो अपने लक को घुमा लो। जियो सिनेमा पे टाटा आईपीएल सिर्फ देखो मत, खेलो भी। हर ओवर অন্তত 100 জন তৃণমূল নেতা তারা দুর্নীতিতে যুক্ত। মারাত্মক অভিযোগ আজকে করছেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলছেন চাকরি চুরি, প্রাক্তন এবং বর্তমান বিধায়ক মিলিয়ে সংখ্যাটা হবে 100 জন তৃণমূল নেতা। পার্থ চট্টোপাধ্যায়, মানিক ভট্টাচার্য, জীবন কৃষ্ণ সাহা মিলিয়ে 3 জন তৃণমূল বিধায়ক গ্রেফতার হয়েছেন। আপনারা জানেন, শুভেন্দু অধিকারী বলছেন এই তালিকা আরও দীর্ঘ হবে, ক্রমশ দীর্ঘ হবে, এবং তিহার জেলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের প্রাক্তন पेज लगने से चौथे घर में होंगे। ये आपकी लाइफ को बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही नए तरह के नतीजे देते हैं। क्यों नए तरह के नतीजे? कैसे? चौथे घर में ऊर्जा होती है चंद्रमा की, और चंद्रमा और शनि आपस में कोई अच्छी इक्वेशन नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली तो देखने में लगता है कि यहाँ शनि आएंगे तो ये मन की शांति, क्योंकि चंद्रमा मन की शांति है, इसको खराब करेंगे, लेकिन नहीं। यहाँ पे शनि बहुत हैरानीजनक तौर पे अच्छे नतीजे दे सकते हैं अगर कुछ शर्तें पूरी कर ली जाएं, या ईश्वर की तरह से ही जन्म कुंडली में कुछ ऐसे योग बने।
कैसे योग, वो हम चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। चौथे घर में जैसा मैंने कहा कि चंद्रमा की ऊर्जा होती है, तो बर्थ चार्ट में जब जब चंद्रमा कंफर्टेबल होंगे, उच्च राशि के होंगे, अच्छी पोजीशन पे होंगे, तो ये शनि अब क्या करेंगे, अब इंसान को लगातार काम कारोबार में तरक्की की तरफ लेते जाएंगे। अब शनि जो है ये नेचुरल कारक होते हैं इंसान की चुस्ती चालाकी के, यानी कोई इंसान की डिसीजन मेकिंग कैसी होती है, फ्यूचर को सोच के अपने फैसले लेता है कि नहीं लेता है, ये शनि डिसाइड करते हैं। और चंद्रमा अच्छे होंगे तो इन लोगों की जो लाइफ है ना, ये इस तरह से होगी कि अपनी डिसीजंस की बदौलत ही ये ना केवल खुद तरक्की करेंगे बल्कि इनके आसपास, इनके कवरेज में जितने भी लोग आते हैं ना, फैमिली फ्रेंड्स सब कुछ, वो भी तरक्की करते चले जाएंगे। लेकिन अगर चंद्रमा खराब हुए तो कहते हैं हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, बाकियों को भी ले डूबते हैं। और किस तरह से ले डूबते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा चालाकियाँ करके, और ये समझते हैं कि इनकी चालाकियाँ बाकियों को समझ नहीं आ रही हैं, जबकि सभी इनकी चालाकियों को समझ रहे होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने लायक बात यह है कि जन्म कुंडली में चंद्रमा जब भी चौथे घर में होंगे, इन लोगों के लिए कई प्रिकॉशंस बताई गई। इनमें से पहली प्रिकॉशन तो है कि कभी भी शराब के एडिक्टेड नहीं होना है। दूसरी प्रिकॉशन, सनसेट के बाद कभी भी दूध जो है एज इट इज़ फॉर्म में नहीं लेना है, लेना है रंग चेंज करके उसके बीच में कोई चीज़ घोल के फिर लेना है। और तीसरी प्रिकॉशन, 42 इयर्स की एज से पहले घर नहीं बनाना है, लेना है रेडीमेड घर लीजिए। जो घर नींव खोद के कंस्ट्रक्शन करके होता है वो घर उनको सूट नहीं करेगा। चंद्रमा जब भी बर्थ चार्ट में खराब होंगे और शनि चौथे घर में होंगे ना केवल इस इंसान का जो माइंड सेट है ये थोड़ा साइकिक हो जाएगा, बल्कि इनके मदर को भी हेल्थ की अलग अलग तरह से प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। चौथे घर में शनि होना तो वो सारी चीज़ें जिनका कारोबार शनि और पानी या ज़मीन अंडरग्राउंड से रिलेटेड है, वो सारे काम इनको सूट करेंगे। माइनिंग का काम सूट करेगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का काम इनको सूट करेगा, इवन लिकर का काम, शराब का काम भी इनको सूट करेगा। ऐसे कामों में अगर ये आ जाते हैं ना, तो ये जीवन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। शनि चौथे घर में है और आप इस शनि से कुछ अच्छे नतीजे लेना चाहते हैं ना, तो इस शनि के बड़े ज़बरदस्त उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो घर के दक्षिण में मिट्टी का हमेशा पानी का भरा हुआ मटका हमेशा रखिए। घर के दक्षिण में, याद रखिए, इसको दीवार से सटा के मत रखिएगा। इसको घर के दक्षिण एरिया में मिट्टी के मटके को हमेशा पानी का भर के ढक के रखिए। जिनके शनि चौथे घर में है, यकीन मानिए ये उपाय इनके जीवन में, इनकी इनकम में, इनकी खुशहाली में 4 चांद लगा देगा। और दूसरा ज़बरदस्त उपाय है कि इनको हर मंडे थोड़ी सी खीर से पहले शिवलिंग को अभिषेक करना है और फिर पानी से उस शिवलिंग को स्नान करवा के आना है। ये जो उपाय है ना, इनके लिए इतना ज़बरदस्त काम करेंगे कि इनके रुके से रुके काम भी जो है ना वो बनने शुरू हो जाएंगे। और इस शनि के लिए एक और बहुत अच्छा उपाय होता है उन लोगों के लिए जो किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे तालाब या कुआं हो, तो हर शनिवार को सवेरे उस तालाब या पानी वाले कुएं में थोड़ा सा कच्चा दूध जो है वो गिरा के आ जाए। तो ये इन लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक उपाय रहता है इस शनि से सारे अच्छे नतीजे लेने के लिए। चौथे घर में शनि के लिए कहा गया है कि जो अल्कोहल बेस्ड दवाइयाँ होती हैं ना, वो इन लोगों के लिए अमृत का काम करती हैं, यानी होम्योपैथी। अगर चौथे घर के शनि वाले लोग जो हैं हेल्थ के मामले में थोड़े से सफ़र करना शुरू हो जाए, इनको कोई ना कोई दिक्कत आनी शुरू हो जाए, शरीर जो है उसकी ऊर्जा कम हो जाए, इनको कोई ना कोई ऐसी बीमारी है जो ठीक ना हो या जल्दी जिसका फ़र्क ही ना आ रहा हो, तो इनको चाहिए कि होम्योपैथी किसी अच्छे डॉक्टर से कांटेक्ट करें। वो दवाई जिसका बेस अल्कोहल हो वो लें, और ये दवाई इनके लिए अमृत का काम करेगी। ये सिर्फ और सिर्फ चौथे घर के शनि वालों के लिए उपाय कहा गया है। तो आप ये उपाय आजमाइए जिनके चौथे घर में शनि है। मैं यकीन से कहता हूँ कि जीवन में जो भी आज का स्तर है ना, उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो ये था शनि चौथे घर का हाल। बहुत जल्द हम मिलेंगे शनि पांचवें घर का भी विवरण लेते। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार। কেমন চলছে সব? আমাদের ছোটখাটো ঝগড়াঝাটি তো হতেই থাকে, কিন্তু এত বছর পরও আপনারা যে কি করে ম্যানেজ করেন? সঙ্গে থাকো, তবে লেপটে থেকো না, নয়তো চিড় ধরবে। একটু সময় দিলে নিজেরাই ফুটে উঠে সুগন্ধ ছড়াবে। বাহ, কি ফিলসফি! ফিলসফি
আমি তো ভাতের কথা বলছি। ফরচুন বিরিয়ানি স্পেশাল বাসমতি চাল বিশেষ করে বিরিয়ানির জন্য লম্বা দানা যে খুব ফুটে ওঠে আর বানায় বিরিয়ানিকে খুব স্পেশাল। দূরে বসে কেন? তুমি তো বলেছিলে ফরচুন বিরিয়ানি স্পেশাল বাসমতি চাল, একে ফুটে উঠতে দাও। संसार की वास्तविकता का ज्ञान कराने वाले हैं, एकांतवास दिलाने वाले हैं, वैराग्य दिलाने वाले हैं, विरक्ति की भावना दिलाने वाले हैं। तो ये सब भी आपको बताएंगे। साथ ही कठिन परिश्रम, इनके भी कारक हैं। मेहनत की अगर हम बात करें, मजदूरी की बात करें, उसके भी कारक रहते हैं। साथ ही दोस्तों नमस्कार। शनि चौथे भाव में ये भी होता है। नमस्कार मित्रों, पुलिस एस्ट्रोलॉजी हिंदी के अगले वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने शनि Play by TF card. Play by USB drive. FM mode. Bluetooth mode. बात करते हैं शनि के चौथे भाव के बारे में, प्रकार का परिणाम देंगे, किस प्रकार का फल देंगे। पर उससे पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मिलती रहे मेरी नोटिफिकेशन जब भी मैं करूँगा वीडियो अपलोड। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पे मैं छोटे छोटे वीडियोज़ और अपडेट्स देते रहने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। और अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं शनि के बारे में। शनि चौथे भाव में कैसा परिणाम देते हैं। शनिदेव कर्म के ग्रह, कर्म फलदाता हैं, कर्म प्रधान हैं, 10वें भाव और 11वें भाव के स्वामी हैं। काल पुरुष कुंडली में मकर राशि और कुंभ राशि के वो आपकी कुंडली में 4th हाउस यानी चतुर्थ भाव में विराजमान है। यानी आपके जन्म के समय आपके लग्न से चौथे शनि बैठे हुए हैं, चंद्र से नहीं, लग्न से चौथे। तो यहाँ पे आपकी कुंडली में चौथे भाव के शनि सबसे पहले माता, सबसे पहले परिवार, घर, गाड़ी, इसमें दिक्कत पैदा कर सकते हैं। माता को कष्ट हुआ है ऐसा प्रतीत होता है मानो शनि जब चौथे भाव में बैठे हैं आपके जन्म के समय। यानी आपके जन्म के समय आपकी माता को कष्ट हुआ है, या आपकी एक जिसको बोलते हैं स्टेप मदर हैं। सबके केस में नहीं, रेयर केसेस में होता है, और भी बहुत कॉम्बिनेशन है, पर ये इंडिकेट होता है जब शनि चौथे भाव में कुंडली में देखे जाते हैं। कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि भवन सुख कब मिलेगा। तो शनि जब चौथे भाव में जाते हैं तो आप ज़मीन के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित रहते हो। लैंड ग्रैबिंग, लैंड को खरीदना है। घर भवन बाद में बनाएंगे, पहले ज़मीन। एग्रीकल्चर के भी स्वामी है ना शनि। तो चौथे भाव में अगर काल पुरुष कुंडली से देखा जाए तो कर्क राशि में चले जाते हैं, जल तत्व में चले जाते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि जो चौथा भाव है वो शनि की अपनी जो उनकी प्रकृति है उसका पूरा विपरीत है। शनि है कठोर ग्रह, क्रूर ग्रह, शांत ग्रह, धीमे चलने वाले पत्थर हैं वो। एक तरीके से देखा जाए तो बर्फ जिसको बोलेंगे, ठंडक उनकी बर्फ के समान है। लीन फिगर है, दुबला शरीर है और अंधेरे में रहते हैं, काफ़ी दूर रहते हैं। सूर्य की रोशनी शनि ग्रह पे बहुत कम पड़ती है। चौथा भाव जो होता है वो माँ का कारक होता है। वहाँ मातृत्व भावना है, वात्सल्य की भावना है, वहाँ पे दया है, करुणा है, परोपकार है, वहाँ पे सुख है, सुख भाव है। तो शनि जब चौथे भाव में जाते हैं तो थोड़ा सा उनको अनकंफर्टेबल फील होने लगता है।
उनको लगता है मैं यहाँ बिलोंग नहीं करता, ये मेरी जगह नहीं है। वहाँ से शनि माता को कष्ट पहुँचाता, आपकी वजह से आपकी माता को कष्ट हो सकता है क्योंकि आपको अपने कर्म उस तरफ सुधारने पड़ेंगे। माँ के साथ जो रिश्ते हैं उसमें दिक्कत आ सकती है, कठिनाई आ सकती है। घर परिवार में थोड़ी कलह हो सकती है। बचपन में आप देखो घर आपका पुराना हो सकता है, पुराने प्राचीन घर, जो बहुत से लोग होते हैं पुराने घरों में रहते हैं, वैसे कंडीशन हो सकती है। शनि चौथे भाव में जाते हैं तो वाहन आने में, घर आने में दिक्कत होती है। इंसान दूर दूर इलाकों में रहता है, शनि काफ़ी दूर के इलाकों तक लेके जाता है। तो आप अपने अगर सिटी में भी रह रहे हो तो आप सिटी के बाहर कहीं पे घर लेकर के रह रहे हैं। और चौथे भाव में शनि बहुत सुखी नहीं होते, लेकिन एक चीज़ ज़रूर बताते हैं, कर्तव्य। आपका कर्तव्य इन्हीं एरिया से कनेक्टेड रहेगा। शनि कर्म के प्रधान है, तो आपका कर्म आपकी माँ के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अपने देश के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अपने गांव अपने शहर के प्रति बहुत बढ़ जाता है। आपकी एक ड्यूटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने परिजनों मित्रों के प्रति बहुत बढ़ जाती है। और अब शनि सुख का त्याग करवाते हैं, तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, सुख का आपको त्याग करना पड़ेगा और सुख से ज़्यादा परिश्रम पे फोकस करना पड़ेगा। शनि चौथे भाव से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं वो करते हैं 10वें भाव को, क्योंकि वहाँ पे शनि जाना चाहते हैं। शनि का नेचुरल हाउस क्या है? कर्म का स्थान है, पर चौथा भाव तो घर है। कर्म के स्वामी को घर में बिठा दो तो वो घर से काम करेगा। वो जाना चाहता है ऑफिस, पर वो ऑफिस जा नहीं पा रहा। तो ये वही बात होगी जो अभी हम फेस करें, लॉकडाउन जैसे सिचुएशन हो गई है, होम क्वारंटीन कर दिया शनि ने। तो इसका मतलब ये भी है कि इंसान घर में रहते हुए भी फ्रस्ट्रेटेड रह सकता है, उसे अकेलापन फील हो सकता है, उसे लगेगा कि वो अपने दोस्तों और मित्रों और परिजनों के बीच में भी वो अकेला, वो भीड़ में भी अपने आप को अकेला महसूस करेगा। पर ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है ताकि आप सोच सको। एक अकेला व्यक्ति जो सोच सकता है वो शायद भीड़ में पार्टी करता हुआ व्यक्ति नहीं सोच सकता। अगर कोई कवि है, कोई लेखक है, कोई साइंटिस्ट है, उसे एकांत की बहुत आवश्यकता होती है। पूजा पाठ के लिए एकांत की बहुत आवश्यकता होती है। 4th हाउस का शनि मानो ऐसा है कि इंसान गुफा में जाके बैठ गया हो, आध्यात्म की उन्नति की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि उसकी दृष्टि सीधे 10वें भाव पे है, कर्म के भाव पे। तो आपके हृदय में कौन से कर्म चल रहे हैं, आपके मन में कौन से विचार उत्पन्न हो रहे हैं, शनि उसको ज़्यादा फोकस करेंगे। और आप देखोगे कि आप कुछ भी आप सोचो वो इस तरह से फलित नहीं होगा, वो वही होगा जो शनि चाहेंगे। खासकर अगर आप शनि की महादशा अंतरदशा में हो या चौथे भाव की महादशा अंतरदशा में हो तो। शनि की तीसरी दृष्टि आपके पड़ती है 6ठे भाव पे। 6ठा भाव प्रारब्ध कर्म का भाव है, 6ठा भाव शत्रु भाव है, रोग भाव है। उस पर शनि की तीसरी दृष्टि आपको दिखाती है कि आपके अपने आपके शत्रु हो सकते हैं। आपको अपने ही लोगों से धोखा मिल सकता है, अपने ही आपके पीठ में छुरा भोंक सकते हैं, नॉट लिटरली, पर कहने का मतलब है कि जिनसे आपको सबसे ज़्यादा उम्मीद होगी, जिनसे आपको सबसे ज़्यादा विश्वास होगा, वहीं से दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत जल्दी किसी पे विश्वास न करें। ऐसे भी आपको ट्रस्ट इश्यूज होंगे लाइफ में जैसे आप आगे बढ़ोगे, लेकिन अगर आप यंग लड़के हो, लड़की हो, यंग देख रहे हो, 25 साल से कम उम्र है आपकी, तो विश्वास थोड़ा कम करो, अपने परिश्रम और पुरुषार्थ पे ज़्यादा भरोसा करो, हर चीज़ को एनालिसिस करो और बहुत ही हम्बल और ग्राउंडेड रहने की कोशिश करो। शनि की 10वीं दृष्टि जब किसी चीज़ पे पड़ती है वो आप पे पड़ती है, यानी कि शनि की 10वीं दृष्टि लग्न पे पड़ती है। यानी शनि कर्म किसके प्रति करना चाहते हैं? आपके प्रति। शनि चाहते हैं कि आप कर्म खुद के लिए भी करो, अपने सुख का त्याग करके पहले दूसरे को सुखी करो, फिर उसके सुख में खुद को सुख पाने की कोशिश करो। ये होगी शनि की मूल प्रवृत्ति। अब चौथा भाव एक ऐसा भाव है जहाँ पे चंद्रमा बहुत बली होते हैं, वो चंद्र का भाव है, तो डेफिनेटली मन को थोड़ा उचाट तो करेगा, आइसोलेट तो थोड़ा करेगा, थोड़ा अकेलापन भी फील होगा जीवन में। यहाँ पे अब ये भी देखोगे कि आपकी जो वाइफ हैं, पार्टनर हैं, हस्बैंड वाइफ जो भी हैं, जो भी आपके लाइफ पार्टनर होंगे, वो आपको थोड़ा क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, क्योंकि शनि है सप्तम से दशम, तो कर्म है पत्नी का, पति का क्रिटिसाइज़ करना। शनि का काम क्या है? बताना गलत रास्ता है, सही रास्ता है। आपको पसंद नहीं आ सकता, आप सोच सकते हो कि सामने वाला शत्रु है, आपको अपने पर्सपेक्टिव में चेंज लाना पड़ेगा।
हो सकता है कुछ लोग शत्रु हो, और हो सकता है कुछ लोगों के प्रति आपके सिर्फ भावना हो और वो उनका इंटेंशन अच्छा हो, पर चूँकि शनि थोड़े रूड हैं तो इंसान के जो नेचर होता है वो थोड़ा रूड हो जाता है, तो उस चक्कर में सामने वाला भी रूड व्यवहार कर सकता है। थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा अगर आपका शनि 4th हाउस में है तो। खुशियों के पीछे न भागें, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियां खोजने की कोशिश करें। शनि सेवा के ग्रह हैं, 6ठे भाव को तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं, यानी वो चाहते हैं कि आप सेवा करो, देश की सेवा करो, माँ की सेवा करो, घर के लोगों की सेवा करो और निस्वार्थ सेवा करो। जब आप वो करोगे आपका 10वां भाव भी इंप्रूव होता है, आपका पहला भाव भी इंप्रूव होता है, यानी ओवरऑल आपको एक ग्रोथ देखने मिलती है, जो शनि एक शश योग की तरह ग्रोथ जिसको कहते हैं वैसे दिखा सकते हैं। अगर शनि स्वग्रही हो जाएं कहीं मकर और कुंभ में बैठ जाएं 4थे भाव में, तो वो तो पंच महापुरुष राजयोग में एक राजयोग दिखा देगा। दिक्कत कब आती है? जब शनि जल तत्व की राशि में हो या शनि केतु के नक्षत्र में हो या शनि नीचस्थ हो जाए, और इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। दिक्कत मतलब उसको रेमेडिफाई कर सकते हैं, पर अगर शनि भरणी नक्षत्र में 4थे भाव में हो तो कभी कभी देखा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, मोस्टली नहीं आती, और वो भी देखना पड़ता है कि दशा महादशा है कि नहीं। पर इन जनरल शनि 4थे भाव में कर्तव्य का भान कराने के लिए आते हैं, मतलब इस जन्म में आपको आपके कर्तव्यों की पहचान आपको करनी है, इसीलिए आपका जन्म हुआ है प्राइमरीली। आपको ये भी देखना है कि मकर और कुंभ राशि कहाँ बैठी है, उन राशियों से शनि कैसे बैठे हैं, शुभ स्थान में बैठे हैं या अशुभ स्थान में बैठे हैं, और उसमें भी आपको मकर राशि को सबसे ज़्यादा गौर देखना है, क्योंकि मकर नेचुरल 10th हाउस है। अब मकर से शनि कहाँ बैठे हैं वो आप देखो, उससे आपको आइडिया लगेगा और ज़्यादा डिटेल में कि शनि एक्चुअली कराना क्या चाहते हैं यहाँ पे। शनि 4थे भाव में ये भी होता है कि इंसान माँ की बहुत सेवा करता है, वो शुभ प्रभाव हो जाता है। গণেশের প্রতিটা প্রোডাক্ট যে বছরের ফলন সেই বছরেই তৈরি, তাই গণেশ মানে একেবারে ফ্রেশ। কেনার সময় ফলনের বছর দেখে নিন আর সব থেকে ফ্রেশটাই কিনুন। और अशुभ प्रभाव में ये होता है कि वो अपने देश से निकाल दिया जाता है, वो अपना देश छोड़ देता है, अपनी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है उसकी किसी और देश में आइडेंटिटी आ जाती है, वो कहीं पे भी टिक के नहीं रह सकता। उसे काफ़ी प्राचीन मंदिरों, प्राचीन पुरातत्व जो चीज़ें होती हैं, खंडहर और बहुत सारी जो पुरानी प्राचीन चीज़ें, वहाँ जा कर के उसके बारे में रिसर्च करना उसको अच्छा लगता है। वो पता लगाना चाहता है कि भूमि के अंदर क्या है, वो ऑकल्ट साइंसेस के धर्म के बारे में, उसको सुख ही मिलता है सेवा करने में। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कहीं आपकी कुंडली में दरिद्र योग तो नहीं होगी। दरिद्र योग हो और शनि 4थे भाव में हो तब आपको नारायण कवच का पाठ करना चाहिए, भगवान नारायण की और भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, उससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। पर शनि सिर्फ कर्म के दाता हैं, वो कर्म से ही ठीक हो सकते हैं। अच्छे कर्म करेंगे शनि आपको अच्छा परिणाम ज़रूर देंगे। शनि जब 4थे भाव में होते हैं तो मोस्टली आपको उसका असर 11th और 2nd हाउस से भी देखना होगा, धन के हिसाब से कैसा है, क्योंकि शनि 2nd हाउस से तीसरे, यानी आपका बैंक कितना एफर्ट डालेगा उधर बैठे हैं, और आपके 11th हाउस से 6th, मतलब कहीं आपकी इनकम से कोई डिस्प्यूट ना आ जाए उसमें भी बैठे हुए हैं। तो ऐसा व्यक्ति होटल्स खोल सकता है, घर ले लेता है लेकिन खुद नहीं रहता, खुद रेंटेड घर में रहता है लेकिन उसके पास बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। इस तरह की बहुत सारी ऑप्शंस और वेरिएशंस आते हैं शनि के 4थे भाव में जाने के कारण। पर आप निराश ना हो, दुखी ना हो। शनि मोस्टली लोगों को 4थे भाव में जाने के बाद बड़ा दुखी सा कर देता है। दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। शनि 4थे भाव में है, मतलब शनि का जो कर्म है वो आपके लिए है। ये अकेली ऐसी प्लेसमेंट है जिसमें शनि की 10वीं दृष्टि पड़ती है लगन पे, यानी शनि का कर्म आपकी उन्नति है। तो अगर शनि आपकी उन्नति के लिए आए हैं तो शनि का कर्तव्य गलत कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात है ना, ज़रूर सोचिएगा। इस वीडियो को यहीं पे अंत करता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले ऐसे ही वीडियो में। शनि के बारे में बात करते रहेंगे, गोचर के बारे में बात करते रहेंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाल बटन ज़रूर दबाएँ और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, घंटा ज़रूर दबाएँ, ताकि उससे नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आएगी जब मैं कोई वीडियो डालूँगा और आप मुझसे जुड़े रहेंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।
আসুন নতুন বছরে স্বাদ আর স্বাস্থ্যকে লক করে নিই আমাদের জীবন। ফরচুন আর আমার তরফ থেকে শুভ নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা। जय श्री राम। आइए जानते हैं, यदि सुख के भाव में दुख का कारक शनि विराजित हो तो किस प्रकार के परिणाम की आप अपेक्षा कर सकते हैं। अपने जन्म स्थान से व्यक्ति को दूर कर देता है और वो समझ में भी आता है, क्योंकि चौथा भाव मातृभूमि का भी है और यदि वहाँ शनि विराजित है तो घर से दूर जाने के योग बन जाते हैं, अपने घर को छोड़ने के योग बन जाते हैं। पहले ये कॉम्बिनेशन बहुत बुरा माना जाता था, पर पिछले कुछ दशकों में जब लोग विदेश में जाने के लिए आतुर हैं, वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में ये योग शुभ माना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, कई बार ना देश काल पात्र के हिसाब से प्रश्न के अनुसार कुंडली के ग्रह योग का फल शुभ या अशुभ हो सकता है। जैसे पहले ये शनि बहुत ज़्यादा बुरा होता था, लेकिन आजकल जब लोग फॉरेन सेटलमेंट के बारे में विचार करते तो ये शनि वहाँ पॉजिटिव है। इसके अलावा ये बताया गया कि मानसिक शांति के लिए भी जातक की ये शनि अच्छा नहीं है। घर में किसी न किसी बात को लेकर कलह रहता है, अवसाद रहता है, माहौल रहता है टेंशन का, और अगर एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है तो दूसरी हो जाती है। ये चौथे भाव में बैठा शनि दर्शाता है।